So I'll be presenting on a broader prospect, on the broader topic of coffee. I'll be handling a few areas related to it. Ashok handle the health benefit, but I will be on a broader context, ज़्यादा economics वाला angle और बाकी कुछ angle. So my flow would be like this: brief history of coffee, some coffee related science, a part of business like coffee business in the world, then sustainability related to it, how coffee is like sustainability is related to coffee and other things. Then finally I will end with some new trends. Okay, so this is the brief timeline of coffee. So it is said that during the 9th century, coffee beans were part of the landscape. They naturally existed in small bushes, but no one had explored them. So it is said that an Arab goatherd who was actually puzzled by the strange behavior of his flocks when they were eating this coffee beans, the fruits. So he tried to see why was that happening, and that is how coffee originated, because he tasted it and he himself felt the same kind of effects. So it is said that the entire thing started from that in Ethiopia. It was in the 9th century. And over the year, the thing actually got more and more popular over the region. And it is said that during the 5th century AD, the coffee actually was, it moved to Arabia, or the current Arabian Peninsula, where it got popular. And from it actually started from Yemen, and then it moved to Saudi Arabia, especially to regions like Makkah. And here, Makkah, the coffee was actually placed in some part, we were placed under cultivation. Also, coffee house culture started, like the practice of drinking coffee in gathering in some places is slowly evolved from during that time, 15th century. And during 16th and 17th century, it gradually reached Europe, and it followed the route of the trade routes. So basically it reached Ottoman Empire or Turkey, and then from there it reached to Eastern Europe, then towards Scandinavian countries, and finally to UK, England. So that is how it followed the route. And in 19th century, as the European colonists, they were having their colonies in South America and Central America. They took the coffee plant with them, or the coffee seeds with them, and they started huge plantation at the place. And those conditions were very suitable for the coffee plant. So the coffee business thrived, and we had these countries like Brazil, Colombia, Guatemala, Venezuela. They became major exporters, and most of this coffee went to Europe. And during this time also, the coffee culture started in US. Is a very interesting point of history, because during the American independence struggle and everything, they rejected the British commodities. So one of the very famous British commodity was tea. So there is Boston Tea Party and everything. So they tried to adopt coffee more vigorously than that of tea because of these reasons. And the American habit of drinking coffee emerged from that time. And during 1890s, it is said that David Strang of Invercargill, New Zealand, he patented the instant coffee powder, because previously you had to make this elaborate setup of coffee making another. And this instant coffee making coffee powder actually caught on very nicely. And mostly during World War I and World War II, it emerged quite drastically, which was further then picked up by Nescafe and Nestle, and we know Nescafe as it is from the same instant coffee formulation. So that is the brief timeline, and the entomological origin, or basically the word coffee, has a very interesting origin. It is said that it came from the Dutch word koffie, which further came from a related word in Turkish, which came from another word in Arabic, which is called kahve or something, which stands for something which has lower appetite, or a hunger suppressant.
So initially, coffee was taken or coffee was viewed as a hunger suppressant. So the word has its origin from that word in Arabic, which stands for hunger suppressant. When we talk of coffee, it is very important to attribute one very crucial aspect of it. This is coffee houses, because throughout history, coffee has existed in close association with this type of establishment, and starting from like 15th, 16th century Arabia to the 17th, 18th century Constantinople, Istanbul, then moving to Paris or France uh, and other European cafes. The cafe culture actually picked up quite nicely over the last 400, 500 years, and they served as center of social interaction and fostered creativity. If you have read any one of these authors like T.S. Eliot, Frank Capra, J.K. Rowling, and Malcolm Gladwell, most of these authors have attributed their writing to coffee shops because they liked writing in coffee shops. So throughout history, coffee houses has played important role. They acted as those centers where a lot of people thought, they discussed, debated a lot of topics. And can anyone tell which place is this? This is a place in India. It's a very famous place, probably the most iconic coffee place of India. Can anyone tell what is this place? Ashok? Um, uh, This is the most iconic. Actually, I didn't put the other side of the image. That way, you can actually see the dressing and guess it. The dressing of Indian the. Coffee House. It is an Indian coffee house, but can you tell the location? Which is this iconic location? Chennai. No, this is actually Calcutta, which is one of the most oldest Indian coffee houses in India. And there is a portrait of, I think, Rabindranath Tagore, which is in the opposite side. I don't see it. And very peculiar table arrangement. This is near College Street, which is near the Presidency College. And is the atmosphere is actually this photo is not very much, like you can see, not much crowd, but in reality there is huge crowd who is present in this location, and it has a different aura, the place. And I would recommend that if any one of you ever goes to Calcutta, then do take this way of going and having a coffee there, especially cold coffee and some sandwiches who are very iconic of this place. And it is so popular that it is said that during this peak time, it was so happening place that if you write something on the table, like some maths question or some other question, you will find it solved when you came the next day or something like that. It was so happening. Currently, it is also popular, but now other coffee shops have taken over. So this is one of the very iconic places of Calcutta. So talking about the science of coffee, um, this is the compound caffeine, which Ashok talked about in detail. I just want to tell some few terms. This is a central CNS stimulant and is the most consumed psychoactive drug. A lot many people consume this. And how does it act? So these are the zoomed out simplified version of this image is simplified image where it shows two neurons communicating, and these red things are the adenosine molecule which bound to the receptors on the next neuron, and they initiate a response. So how adenosine actually adenosine is like formed when you do a lot of activity, like throughout the day. When you burn a lot of ATP and other things, you do a lot of activity. Adenosine slowly accumulates, and as you move throughout the day, you have this feeling of drowsiness or something like that, which comes due to this abundance of the adenosine and their binding on the receptor. But what caffeine does is, caffeine actually is a close molecule which actually is, which blocks these receptors and prevents adenosine to bind to the corresponding receptor. As a result, the effect of adenosine on the body is not reflected, or there is a suppression of the effect. So that's why we feel this. We have this feeling of alertness, and it is because of this blocking of the adenosine receptors. And there are other things like polyphenol
phenols and other, which Ashok have built very nicely. So moving on to the production, we have something called the bean belt. Actually started then from Ethiopia, but it has spread to other part of the world, mostly around the equator. And you have places like Brazil, Colombia, you have Tanzania, Ethiopia. These are very famous places where a lot of good quality coffee comes. And coffee generally has two varieties, you must be knowing. There is this Arabica and Robusta. Arabica is considered to be the more finer version, while Robusta is considered to be a little bit lower in the taste and other appeal. And recently, new countries have emerged like Vietnam. It didn't had much output like 30, 40 or 50 years back, but currently it is, I think, the second largest producer. So it is emerging. India also is one of the producers, but we don't produce that much. Mostly, like a lot of part of that is consumed. A small part is exported to other places. But this belt is where most of the coffee production in the world take place. Hello? बाबा हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो. आवाज जा रही है क्या? नहीं हाँ बोल बोलो रहा हूँ बोलो. यार, इंडिया टॉप 10 में है. इंडिया टॉप 10 एक्सपोर्टर्स है कॉफी का, अंडर 10 है. हाँ अंडर ये है, लेकिन ये जो है ना कोलंबिया ब्राजील, ये लोग का जो क्वांटिटी है वो इंडिया से बहुत ऊपर है. तो इंडिया इज लाइक, हाँ, ब्राजील ऑब्वियसली बहुत हाँ. ज्यादा है. और इंडियन कॉफी का ऐसा है ना कि पता नहीं मीन्स जैसे कुछ जैसे इथियोपियन कॉफी है तो उसको बहुत चेरिश किया जाता है. इंडियन कॉफी का उतना सिग्नेचर बहुत ज्यादा नहीं बनाया है बहुत सारी जगह पे. स्लोली में भी इमर्ज कर रहा है, बट अभी जो जायंट लीड कर रहा है वो ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इथियोपिया, ये सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. इंडिया इज स्लोली, अभी एक्चुअली प्लान भी चल रहा है कि कैसे इंडिया को भी टॉप में लाने के लिए, और वो सब इंडिया में कॉफी कल्चर भी थोड़ा सा प्रमोट हो रहा है, तो वी कैन प्रोबब्ली सी सम ज्यादा प्रोडक्शन आउट ऑफ इंडिया. लेकिन ये बेसिकली ये इसी रीजन के आसपास ये करते हैं. ये थोड़ा कॉफी इकोनॉमिक्स पे बात करता हूँ. तो ये ब्रॉड डेटा है, ये मैंने स्टैटिस्टा करके ऑर्गेनाइजेशन वहां से लिया था, क्योंकि जस्ट टू सी कि इंस्टेंट कॉफी और बाकी कॉफी में क्या उसमें ग्रोथ है. तो द डेटा शोज कि instant coffee is of lower here. The higher proportion is that of roast coffee, which is consumed throughout the world. ये पूरा वर्ल्ड का ये है, एंड स्लोली वो इंक्रीज कर रहा है. ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग. पहले इंस्टेंट कॉफी का भी अच्छा खासा शेयर हुआ करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम में भी, लेकिन वो अभी डिक्लाइन कर गया है. और कॉफी कल्चर काफी ज्यादा राइज किया हुआ है, स्पेशली द राइज ऑफ जायंट्स लाइक स्टारबक्स, जो बहुत बड़े चेन्स हो गए और काफी ज्यादा ये कर रहे हैं. तो वो लोग खुद अपना कॉफी रोस्ट करके अपना खुद वो करते हैं. तो उसके चलते भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है. और दूसरा ये कि कहाँ पे पी रहे हैं. पहला तो ये क्या पी रहे हैं, दूसरा ये कि कहाँ पे पी रहे हैं. दिस इज एट होम और आउट ऑफ होम. ठीक है, तो एट होम तुम देख रहे हो कि इट इज हार्डली लेस देन 20%, और मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो आउट ऑफ होम है. और दिस इज आउट ऑफ होम मींस वो कैफे हो गया, स्मॉल शॉप्स, इस टाइप की चीजें, स्टारबक्स काइंड ऑफ थिंग. तो काफी ज्यादा जो वैल्यू डिराइव हो रहा है वो ये कॉफी शॉप्स और यहाँ से हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड. और उसी के रिलेटेड चीज आता है कि ये लोग जो बना रहे हैं कॉफी, उसका वैल्यू चेन क्या है और ब्रॉड चीजें कैसे ये करते हैं. तो ये मोटा मोटी वैल्यू चेन है कि दे स्टार्ट विद द कल्टीवेशन प्रोसेसिंग, विच इज दिस प्रोड्यूसिंग कंट्री. ब्राजील हो गया, इथियोपिया हो गया, वियतनाम हो गया. तो दे स्टार्ट विद दिस रोबस्टा और अरेबिका वैरायटी, एंड फिर उसको पिक करते हैं. जो रेड बेरीज होते हैं दे आर पिक्ड, एंड ग्रीन बेरीज आर नॉट पिक्ड. देन देयर इज प्रोसेसिंग की वो उसका पल्प को निकाल के दे ड्राई, सन ड्राई करते हैं, और उसके बाद दे एक्सपोर्ट इट. ये एक्सपोर्ट ये ग्रीन स्टेट में ज्यादा किया जाता है. इट इज सेड दैट कि जो ग्रीन स्टेट में कॉफी रहता है उसमें वो वैल्यू लूज नहीं होता, उसका एरोमा और ये फीचर्स लूज नहीं होता है, एंड दे कैन ट्रांसपोर्ट इट. बट एज यू रोस्ट इट, उसका वैल्यू और एरोमेटिक फीचर्स लूज हो जाता है विद इन अ फ्यू डेज. सो इट इज प्रिफर दैट द रोस्टिंग इज डन मोर डाउन द लाइन, लाइक जितना क्लोज टू कस्टमर. बट इसका प्रॉब्लम यह है कि जो वैल्यू एडिशन होता है रोस्टिंग और बाकी चीजों का, वो फार्मर को नहीं मिलता. तो फार्मर इज जस्ट ड्राइंग द सीड्स और फिर इसको एक्सपोर्ट करता है. तो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग के बाद कूलिंग किया जाता है, फिर ब्लेंडिंग करते हैं. जैसे बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि रोबस्टा 60
अरेबिका 60, रोबस्टा 40 या अरेबिका 80, रोबस्टा 20, ये कॉम्बिनेशन होता है। और बाकी बहुत सारे कंट्रीज का भी वो करके एक स्पेशल फ्लेवर सिग्नेचर बनाता है। दे डू ग्राइंडिंग, फिर पैकेजिंग करके डायरेक्टली वो कंज्यूम कर सकता है कॉफी शॉप इटसेल्फ, जैसे स्टारबक्स वारबक्स में होता है, या बाकी किसी को डायरेक्टली बेच रहे हो तुम कॉफी पाउडर, और फिर कॉफी ब्रूइंग होता है, और फिर लास्ट में उसका डिस्पोजल होता है। ये मोटा मोटी ये रहता है। लेकिन अगर हम लोग एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि दिस इज एक्चुअली ह्यूज बिजनेस, सेड टू बी ओवर $100 बिलियन पर ईयर जो रेवेन्यू है, बट हाउ मच ऑफ दैट गोज टू द फार्मर, और वो उसका वैल्यू चेन में एडिशन कैसे होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ विच आई फाउंड ऑनलाइन। इट सेज फार्मर गेट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द मनी यू स्पेंड ऑन द मॉर्निंग कॉफी। तो उसने एक ब्रेकडाउन किया है यूरो में, कि एक स्टैंडर्ड यूरो बोला पाउंड में, कि एक स्टैंडर्ड 2.5 पाउंड कप में कितना कितना कहाँ कहाँ मिलता है। तो उसमें जैसे कॉफी है वो 10% का उसी का रहता है, मिल्क जो है वो हार्डली 10 सेंट्स का रहता है। बाकी तुम देख रहे हो बाकी चीजों का कितना ज्यादा रोल है। कॉफी कप का ज्यादा ये है, टैक्स का रहता है, स्टाफ 100 पेन। और फिर जब कॉफी का भी तुम फर्दर ब्रेक डाउन करते हो तो उसमें ग्रोअर जो है वो हार्डली 1 सेंट की तरह से रहता है। बाकी प्रोसेसर है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सपोर्टर है, और फिर रोस्टर कॉस्ट एंड मार्जिन। तो ये रोस्टर कॉस्ट जो मार्जिन मैं वही बता रहा था कि दे सिंस द फार्मर डोंट डू रोस्टिंग एंड अदर वैल्यू एडिशन, दे एक्चुअली लूज आउट ऑन ए मेजर चंक। और फिर वो जो रोस्टिंग कंपनी है और जो है वो लोग को काफी ज्यादा इसका फायदा मिलता है। एट द एंड फार्मर दे हैव अ वेरी लेस प्रॉफिट शेयर ऑफ द टोटल 2.5 पाउंड कप। ये सिनेरियो काफी हद तक बहुत सारी जगह पे सिमिलर ही है। और ये चीज जो है, आई थिंक मेनी वीक्स बैक आई आल्सो शोड दिस थिंग, हाँ, बट यू शोड but later I found that this is a very narrow view of thinking. When we discuss about economics, I'll let you know. This is actually not the reality, as in the farmer is getting less. That is not directly related. This is just one side of the coin. नहीं वो है, लेकिन मैंने भी फार्मर्स का वो वाला पढ़ा, उसमें एक्चुअली दे गेट मीन्स, देखो ये इसमें जो दिखा है कि 1% मिल रहा है उसको, वो में भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेशन है जो भी है। नहीं, that is completely correct, or even an overestimate. That is okay. I'm not telling that this is this does not mean that farmer is getting ripped off. That नहीं, फार्मर का ये रहता है, लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखे हुए अभी कुछ कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। जैसे वो बता रहा था ना, एक्चुअली फार्मर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, सीरियसली इफेक्ट पड़ता है, और उसको भी दिखाऊंगा कैसे। तो आगे में भी एक दो ये है कि कैसे वो लोग अपना चेंज कर रहे हैं पूरा प्रैक्टिस को। तो इसमें जैसे अभी मैं पढ़ रहा था तो 2-3 यूरोपियन कंपनीज है, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में इस चीज को बहुत ज्यादा। तो फेयर ट्रेड पता होगा, फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो फेयर ट्रेड में वही होता है कि दे एक्चुअली पास ऑन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा ये जो रोस्टिंग ये वाला करता है ना, वो अभी अफ्रीका में करता है, और फिर वो उसको सिप करते हैं इमरजेंसी। तो वो कर रहे हैं, और वैल्यू चेन में जो है उसको सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रॉफिट उसको दे रहे हैं। तो वो जरूरी है कि क्यों ये देने के लिए, स्पेशली मीन्स ओवरऑल जब तुम ये देखते हो फार्मर को, मीन्स वही है कि थोड़ा वैल्यू एडिशन पे अगर थोड़ा ध्यान दे तो उसको काफी फायदा होगा। और थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ूं तो वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसी से रिलेटेड ही है, कि एक्चुअली में कॉफी ऐसे उगता था। बाबा थोड़ा सा पीछे रोकूंगा। हाँ बोलो बोलो। वो जो लास्ट पॉइंट हो रहा था ना कि फार्मर को फाइनल बेनिफिट वो रोस्टिंग जो एक कंपोनेंट है वो उसके एंड पे नहीं होता है। अगर उसको उसके एंड पे वो भी ले दिया जाए तो वो हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वैसे मेजर प्लेयर्स हैं कॉफी मेकिंग में, वो रोस्टिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत क्रिटिकल होता है। लाइक वो यूनिकनेस लेके आता है। अगर स्टारबक्स अपने रोस्टिंग प्रोसेस में है या कोई और अपने प्रोसेस में है, तो उनकी कॉफी का जो एक्चुअल यूनिकनेस है वो वहां से डिफाइन होता है जब वो रोस्टिंग करने जा रहे होते हैं। और उसके बहुत अलग अलग आर्ट है, मतलब रोस्टिंग ऑल टुगेदर एक आर्ट है जो अलग अलग कंपनीज फॉलो करते हैं, और उनकी यूनिक आइडेंटिटी। हेलो हेलो
हेलो, आगे जाओ। हाँ वो पता नहीं लूज हो गया। तो वही बोल रहे हैं हाँ, कि सॉरी सॉरी, आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, आ रही हाँ। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि वो रोस्टिंग वाला जो पार्ट है वो यूनिकनेस लेके आता है हर एक कंपनी के हाँ लिए। हाँ, लेकिन वो अभी उसको क्या नहीं हुआ, ट्रांसफर कर सकते फार्मर्स को। वो हमको लगता है, मैं अभी पढ़ रहा था, देयर आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन हु आर डूइंग रोस्टिंग इन अफ्रीका और बाकी जगह पे। क्या वो बोला आपने? पॉइंट अफ्रीका में और बाकी जगह पे ना, वो धीरे धीरे रोस्टिंग, वो बोल रहे हैं ना कि वो एक आर्ट है जो वो सिखाया जा सकता है और जिसको लर्न किया जा सकता है, लेकिन कभी ट्रेडिशनल हम लोग उसको उसको ये नहीं किया, लेकिन अभी धीरे धीरे वो सिखाया जा रहा है। वो इवन फैक्ट्रीज, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी सेट कर रही है कॉफी स्टेट के आसपास। तो कहीं ना कहीं वो हो रहा है, लेकिन स्लोअर रेट पे हो रहा है। मीन्स ओके। मीन्स समझ रहे हो कि वो एक आर्ट है, मैं मानता हूँ आर्ट है, लेकिन वो आर्ट को भी सिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यूरोपियंस और जो रोस्टर्स हैं वही बस वो आर्ट को जानते हैं या वो नॉलेज को परस्यू करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिन रोस्टर्स की यूनिक आइडेंटिटी उनके उसी आर्ट पे डिपेंड करती है, तो वो क्यों जाएंगे किसी को सिखाने? इट्स लाइक कि मैकडी को बर्गर बनाना आता है, वो रेसिपी क्यों शेयर करेगा हाँ किसी हाँ, को? कोक को कोक बनाना आता है, वो वही नहीं नहीं, रेसिपी क्यों उस शेयर करेगा वो किसी हो रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि जैसे अभी ट्रेडिशनली देखिए ये सब चीजों को एक वो डाउनस्ट्रीम उसको तरह लिया जाता है कि बीन को रोस्ट। अभी लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसा हो रहा है कि जैसे तुमको पता होगा इंडिया में, ठीक है, देर आर थिंग्स लाइक ब्लू टोकाई, सुना है नाम? एक ब्लू टोकाई करके बहुत फेमस रोस्टर्स है। तो ये सब पहले 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये अभी क्या हो रहा है, एमर्जिंग जो न्यू जनरेशन है, बहुत सारे लोग, वो लोग भी रोस्टिंग पे ट्राई करना चाहते हैं। जो ट्रेडिशनली यूरोपियन मोनोपोली हुआ करता था या अमेरिकन मोनोपोली हुआ, तो धीरे धीरे वो भी हो रहा है कि पीपल आर गेटिंग इनटू दिस रोस्टिंग बिजनेस, क्योंकि उनको पता चल गया ना इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। तो वो धीरे धीरे उसको साइंटिफिक टेक्निक और वो सब यूज करके कर रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड मेरे को ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो रहेगा कि फार्मर थोड़ा ज्यादा उसको यूज करना स्टार्ट करेगा प्रोसेसिंग को। एक्चुअली अगर मुझे पूछो तो फार इट्स अ रिसोर्स, द टाइम, द इन्वेस्टमेंट एंड कितना एक्सपर्टीज गेन करना है वो एक चीज में। तो इफ फार्मर जितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है कॉफी को सही तरीके से ग्रो करने में, उसके प्रोसेसेस में ध्यान देने में, अगर वो उसमें फिर आधा टाइम निकाल के फिर रोस्टिंग भी सीखने लगेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, See, Ashok, tell me, tell me one method how would you increase the share of farmer income? कैसे करोगे? See, you don't need to increase it by including the value addition of roasting into the farmer. Farmer I am can saying, increase land size ना। हाँ तो वो कैसे करोगे? कंज्यूमर तो डायरेक्ट पे नहीं किसी करेगा। चीज में भी इन्वेस्टमेंट देख, इंक्रीमेंटल जो मार्जिनल इंक्रीज होगा, तू एक एकड़ ज्यादा जमीन लेके वो करेगा, या वही पैसे में तुम रोस्टिंग का, मतलब रोस्टिंग इज नॉट फ्री। सी 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 वही है, वही तो मैं बता रहा हूँ। जो एरिया में वो रोस्टिंग कर रहा है ना कॉफी प्लांटेशन, वो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है, वो एक्सपैंड नहीं कर सकता एरिया को, ये कंस्ट्रेंट है। ओके। मेरा भी इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। लाइक आपने मालाबार कॉफी का सुना होगा, सिवेट कॉफी का सुना होगा। सिवेट कॉफी एक्चुअली वो चीज है जिसमें वो सिवेट आके कॉफी के सीड्स को खाता है एंड देन पूप आउट करता है, और वो पूप आउट से जो चीज निकलती है फिर उसको बहुत हाई प्राइस में फार्मर बेच पाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यार यूनिकनेस का जो पॉइंट आ सकता है फार्मर के एंड पे वो वहां पे है, जो वो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में कुछ कुछ और मेजर चेंजेस ले आके उस चीज की वैल्यू बढ़ा दे, उस बीन की वैल्यू बढ़ा दे, जिसको आज वो 2 रुपए में बेच रहा है तो 5 रुपए में बेच पाएगा। वो है, जैसे अभी भी तुम देखोगे तो बहुत सारा फेयर ट्रेड सर्टिफाइड और ऑर्गेनिक कॉफी मार्केट ये करता है। वो इवन एक बहुत अच्छा एनालॉजी मैंने पढ़ा, उसमें बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कॉफी जो है, तुम अगर 20 यूरोस, ठीक है, उस पर केजी 20 यूरो से कम में तुम खरीद रहे हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं फार्मर को इम्पैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो उसके ऊपर वाला जो रहता है वो कहीं ना कहीं वो एडजस्टेड रहता है उस चीज को, और वो फार्मर को ज्यादा पे करता है, और उसके नीचे वाले जो रहते हैं वो मास में प्रोड्यूस करते हैं, और फार्मर को जो नॉमिनल उसका रेट मिलता है वो थोड़ा कम रहता है उसके। बाबा मैं उसको इस एंगल से भी देख पाता हूँ। लाइक देयर आर ग्रोअर्स हु आर ग्रोइंग बासमती राइस एंड देयर आर सम कल्टीवेटर्स हु आर ग्रोइंग
नॉर्मल पैडी, ठीक है, बासमती वाले को रेट हाई मिल रहा है ना। तो मुझे लगता है कि फार्मर्स के एंड पे इस तरीके का जो एज है वो क्रिएट कर पाए तो वहां पे ज्यादा फायदा है। मेरे को ऐसे पर्सनल फील होता है कि स्लो, जैसे अभी वहां पे बहुत अफ्रीका में क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव डेयरी वो कॉफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है कि वेयर कॉफी ग्रोअर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोऑपरेटिव्स, और वो कोऑपरेटिव का स्टेक है रोस्टिंग में और फाइनल प्रोडक्ट में, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट्स में भी, तो उसको उनको ज्यादा मिलता है थोड़ा, मींस उसके हिसाब से, और डायरेक्ट जो वो रहता है वो मिलता ही नहीं है उसके हिसाब से। ये बहुत डाइसी टॉपिक है, लेकिन नहीं, इसको दो तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है। एक अप्रोच तो है कि रोस्टिंग वाला पार्ट भी फार्मर के एंड तक लेके आए ताकि वो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में एक और प्रॉफिट मार्जिन वहां से भी मिले उसको। दूसरा ये हो सकता है कि जो उनके अपने ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस रहे उसको थोड़ा सा और डाइवर्स करें, उसमें यूनिकनेस लेके आए ताकि उनका जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा प्राइस दे पाए। वो उसका आगे वाला स्लाइड उसी के ऊपर है, दिखाता हूँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, तो वो उस पर डिस्कस करेंगे। ये ट्रेडिशनल कल्टीवेशन होता है, ठीक है, शेड ग्रोन कॉफी। कॉफी जो है वो अंडर स्टोरी क्रॉप है कि ऊपर में कैनोपी रहेगा, शेड में उगेगा, और ये बोला जाता है कि फ्लेवरफुल रहता है वो पूरा जो सेटिंग से। और एक ये बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टाइप है कि ऊपर में एक क्रॉप है, नीचे एक क्रॉप है, और वो लोग आपस में ऐसे ये कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता है, रियलिटी में ये होता है, दिस इज कॉल्ड सन ग्रोन कॉफी। ये क्या हुआ कि 1930s 40s के बाद रैपिड बूस्ट किया कॉफी के डिमांड में, एंड कॉफी जो शेड ग्रोन होता है उसका वो डिमांड को वो नहीं कर पाया, केटर नहीं कर पाया। तो दिस टेक्निक वाज स्टार्टेड व्हिच इज कॉल्ड सन ग्रोन कॉफी। सन ग्रोन कॉफी में ये होता है कि इट इज ग्रोन एज अ नॉर्मल हम लोग का क्रॉप की तरफ इन फ्लैट इन ओपन सन। तो उसमें ये देखा गया कि इसमें ज्यादा डेंसिटी तुम रख सकते हो क्रॉप्स का, और ज्यादा डेंसिटी के चलते तुम्हारा ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज यू गेट हायर आउटपुट ऑन एन एकरेज ओवरऑल लेवल पे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है कि तुम उसके नेचुरल जो उसका जो इकोसिस्टम था उससे तुम हटा दिए, तो उसका इम्पैक्ट ये रहता है कि पेस्ट अटैक बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, और बाकी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो उसको केटर करने के लिए फार्मर क्या करता है, पेस्टिसाइड डालता है, फर्टिलाइजर डालता है, और इसी टाइप की चीजों को इन्वॉल्व करता है। तो ये सन ग्रो, और ये भी है टेस्ट वाइज भी बोला जाता है कि सन ग्रोन का थोड़ा सा टेस्ट प्रोफाइल लोअर रहता है, शेड ग्रोन जो नेचुरल है उसका टेस्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है। और लेकिन करेंटली बहुत ज्यादा जो कॉफी अभी उग रहा है ब्राजील में और काफी जगह पे, ये सन ग्रोन कॉफी, और धीरे धीरे अभी वही प्लान चल रहा है कि किस तरीके से शेड ग्रोन कॉफी की तरफ जाया जाए। और जब अगर वही होता है ना कि आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में वही होता है कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है एनवायरमेंट पे, स्पेशली पेस्टिसाइड यूजेज और फर्टिलाइजर। एक पेस्टिसाइड वाला भी एंगल है बाबा, दूसरा एंगल ये भी है कि लाइक ये मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहा है मोनोकल्चर, ना। हाँ वही और मोनोकल्चर को। इंडिया के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो केरला कर्नाटका वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग रीजन्स है बायोडाइवर्सिटी को लेके। वहां पे ऐसी प्रैक्टिसेस अगर प्रमोट की जाने लगी तब तो बहुत बड़ा तबाही है जो देश हाँ आगे। एक्चुअली कर भी रहा है, सनग्रोन कॉफी बहुत जगह पे स्टार्ट हो गया है क्योंकि इसका आउटपुट उस हिसाब से ज्यादा है। लेकिन इसका वही है कि जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि बहुत खतरनाक इस पे पेस्ट अटैक होता है, क्योंकि ओपन है। नेचुरली जो रहता है, जो शेड ग्रोन और जो वो रहता है उसमें ऊपर कैनोपी का जो ट्री रहता है वो प्रिवेंट करता है वो सब चीजों को, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, तो पेस्ट अटैक बहुत रैपिडली बढ़ता है इसमें। तो अभी इस पे भी काफी ज्यादा, इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स में वो लिखा रहता है शेड ग्रोन कॉफी, ठीक है। अगर कोई जो पॉपुलर ब्रांड से कहीं पे लिखा भी रहता है शेड ग्रोन कॉफी, तो उसको पॉपुलराइजेशन जरूरी है। दूसरा ये रहता है कि ये एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल कुछ सस्टेनेबिलिटी एसोसिएशन करके, उसका इन्होंने ये किया है कि हाउ मच सस्टेनेबल स्टैंडर्ड जो होता है ना, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड जैसे कि रेन फॉरेस्ट अलायंस, फेयर ट्रेड सर्टिफाइड और 4C, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन क्या है कि लाइक वॉलंटरी रहते हैं या सेमी वॉलंटरी टाइप का रहता है। तो इन्होंने एक 2016 में एक जैसे एनालिसिस किया था कि ब्रॉडली कितने कॉफी प्रोपोर्शन है जो कंप्लायंट है, VSS स्टैंड फॉर वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें ये देखा कि रफली 34% सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, बाकी 44 और 21 ये नहीं मीट कर रहे। 21% है कि हो सकता है ये लोग सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड अगर अप्लाई कर रहे हो वो सब,
लेकिन उनको मिला नहीं है, और 44% कन्वेंशनल तरीके से। तो ये पहले हुआ नहीं करता था, लेकिन पिछले 20 साल के अंदर ये काफी राइज किया है, 10-20 साल के अंदर, जो कि यूरोप में, स्पेशली यूरोपियन मार्केट, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस एंटायर टॉपिक। और जो बड़े बड़े कॉफी चेन्स हैं, कुछ कुछ जैसे स्टारबक्स हो गया, दे हैव वाउड कि वो लोग नेक्स्ट 5 years के अंदर वो अपना पूरा जो कॉफी है वो सर्टिफाइड कॉफी कर दे 100%, ये अपना ये में। लेकिन सारे ब्रांड्स उसको फॉलो नहीं कर रहे, कुछ लोग का अलग अलग टारगेट्स हैं। तो ये मोटा मोटी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पे है। और जो दूसरा इम्पैक्ट है वो अवॉइडेबल है, वो इंडिया में एक्चुअली इतना रिलेटेबल नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जैसे ये इफेक्ट राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है कि कॉफी फार्मिंग और प्रोसेसिंग में इतना ज्यादा एनर्जी वो होता है, ये बेसिकली कि इतना ज्यादा वेस्ट और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे ये रहता है। तो इसमें देख रहे हो जैसे लास्ट में वेस्ट रिसाइकलिंग और ये सब यूज होता है, तो कॉफी कप सारे बिग कल्प्रिट इन द एंटायर थिंग। और यूएस में वैसा कल्चर है कि दे गो टू कॉफी शॉप, स्पेशली स्टारबक्स और अदर, दे ऑर्डर देयर थिंग एंड उनको एक कोई कप में मिलता है। वो कप में क्या रहता है कि ऐसे तो पेपर वो उसका बना हुआ रहता है, लेकिन उसका प्लास्टिक, ऊपर का ढक्कन प्लास्टिक का होता है, और बहुत सारी जगह पे इवन स्ट्रॉ भी यूज करते हैं। तो इट स्टैंड्स टू लाइक दिस इज 16 बिलियन कप्स, लेकिन काफी कुछ जगह पे 40 बिलियन कप भी लिखा हुआ है। आई एम कंफ्यूज कि कौन सा डेटा सही है, लेकिन इट्स इन बिलियंस, द बेसिक थिंग इज इन बिलियंस। और उसमें से रिसाइकलिंग होता है, बट यू कैन जस्ट इमेजिन कितना इम्पैक्ट डालता होगा वो। दे डोंट यूज दैट सेरामिक वाला कप, दे प्रेफर दैट टेक अवे वाला। और इवन दो दे आर ड्रिंकिंग देयर, तभी वो प्रेफर करेंगे कि वो कप वाला जिसमें पेपर प्लास्टिक यूज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कंज्यूमर के एंड में क्या किया जा सकता है, एक तो है कि सर्टिफाइड कॉफी खरीदो, अपने लेवल पे भी क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉफी खरीदो, बहुत सारी जगह लिखा भी रहता है। और प्लास्टिक कंटेनर, पेपर कंटेनर को भी डिच करना चाहिए, कि वो भी इतना कुछ खास ये नहीं रहता। वेन एवर पॉसिबल यूज सेरामिक वाला, सेरामिक और ग्लास, और ये बाय लोकल। और वही प्लास्टिक स्पून, और बहुत सारी जगह होता है ना स्पून, ये सब दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सब भी इम्पैक्ट डालता है। ये छोटे छोटे चीजें जो वी कैन डू एट आवर लेवल और उसके ये में। तो ये मोटा मोटी था। बाकी कमिंग टू ए न्यू ट्रेंड, दिस इज थिंग कॉल्ड कॉफी टूरिज्म, जो इंडिया में काफी इमर्ज कर रहा है। एंड आई विल शो यू सम पिक्स ऑफ सम ऑफ द रिजॉर्ट्स और सम ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन। ये वोली चिकमंगलुर, कुर्ग, उसके आसपास के एरियाज है, कर्नाटका और उसके आसपास के। तो मोस्टली आजकल वो लोग दे आर प्रोवाइडिंग पैकेज वेयर यू कैन गो एंड विजिट प्लेस, जिसमें ऐसा है कि कॉफी एस्टेट के बीच में एक रिजॉर्ट टाइप का होगा, वेयर यू कैन एंजॉय द एम्बियंस, कॉफी पियो, सी हाउ कॉफी इज ग्रोन एंड रिलैक्स। एंड ये तो ये बहुत फेमस 2-3 जगह है। ये एक जगह है उसी का ही, ये दिस स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 5-10,000 से लेके 30,000 तक पर नाइट चार्जेस हैं। दिस इज अ वेरी निश काइंड ऑफ टूरिज्म ये जो इमर्ज कर रहा है। दिस इज अनदर इमेज ऑफ दैट सेम प्लेस। और ये भी कॉफी है, तो अगर पॉसिबल है आप फ्यूचर में कभी जाके देखना कैसा क्या है कॉफी टूरिज्म। दिस इज इमर्जिंग एज ए न्यू इन लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री में एक न्यू काइंड ऑफ थिंग। चलो, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन हो तो